unit of cloud computing. First one is OpenStack. OpenStack is a OpenStack is a open source application जिसमें आपको बहुत सारे रिसोर्स दिए जाते हैं यूज करने के लिए। आप यहाँ पर अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, मनी के हिसाब से आप रिसोर्स खरीद सकते हैं एंड यूज कर सकते हो। अब ये क्लाउड है। क्लाउड मेनली जितना भी आपकी एप्लीकेशन है जो रन करवाना चाहते हो, होस्टिंग करवाना चाहते हो, जैसे कि आपको कंप्यूटर जिसमें लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, अगर यही लिनक्स सिस्टम जिसमें आप अपाचे चला रहे हो, माई स्क्यूल चला रहे हो, या कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, यही सब चीजें अगर आप अपने कंप्यूटर से होस्ट करोगे तो आपको दिन रात लग जाएंगे इसको यूज करने में, मतलब इसको मैनेज करने में। और अगर यही सब आप क्लाउड पर यूज करते हो, वहां यहाँ करोगे, वहां पर ये सब चीजें आप दिन रात चला सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ क्लाउड यू रिक्वायर ओनली इंटरनेट एंड यू एबल टू टेक होस्टिंग। आप करके एप्लीकेशन ले सकते हो। आपको बहुत रिसोर्सेस मिल रही है। मतलब अगर आप खुद से होस्टिंग करते हो और रिसोर्सेस को गेन करके उस पर वर्क करते हो तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट इन केस ऑफ क्लाउड you can save your time and you can use many resources. Okay, OpenStack mainly इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, इसको एडिट करे अपने हिसाब से। मतलब आप इंस्टॉल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, रन करके अपना खुद का क्लाउड सेटअप बना के उसको यूज कर सकते हो। कोई पे नहीं करना। अपने खुद के इन्वायरमेंट के हिसाब से किया है, जो बनाया है उसको अगर कोई और यूजर, मतलब आप अगर अपने खुद के हिसाब से वर्क करते हो एंड कोई यूजर इसको यूज करता है तो यू कैन दे कैन गिव यू या दे कैन पे यू। यहाँ पर ओपन स्टैक मतलब ये है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्स दिए जाते हैं यूज करने के लिए। यहाँ पर काफी चीजें कर सकते हो, जैसे कि लोकल होस्ट आपका कंप्यूटर है, ओके, ऐसा ही आप कंप्यूटर ले सकते हो क्लाउड में और अपनी होस्टिंग, अपनी एप्लीकेशन, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें लोकल होस्ट में करते हो उतनी ही चीजें आप क्लाउड पर कर सकते हो। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होती है जो फोन में यूज करते हो, बहुत सी एप्लीकेशन है जो क्लाउड में रन होती है। हर एक रिसोर्स के लिए आप खुद का कंप्यूटर सेटअप नहीं बनाओगे, ओके। बिग कंपनी यूज क्लाउड टू सेव देयर मनी। OpenStack is a free and open source software platform for cloud computing, mostly deployed IaaS means infrastructure as a service. So यहाँ पे हमने OpenStack के दो ऑपरेशन है, like single host mode and multi host mode. Let's see one by one here. Okay, single host mode. In single host mode, we have a central server. You can see under the single host mode, central server and passage of traffic is given. Okay, so let's see. In single host mode, we have a central server which contains all the networking service. The single host mode having central server, the word to contain the networking service. Okay, there are different compute nodes which have virtual machine running on them. These compute nodes are connected to central server. Okay, so when virtual machine means access to internet, the traffic is passed to the central server, which act as a gateway to connect it to internet. Gateway is a networking device that connect to network using different protocol together. Okay, multi-host mode. In multi-host mode, we don't have no central server. Means in this central server is not there. Instead, each compute nodes which have virtual machine running on them have in network service in them. So virtual machine use this compute node as gateway to connect in internet. For this, each of these compute node meet public IP address. Then, nothing IP address are used when node become inactive. The IP address is transferred to another node which want to become active. Okay. Now let us discuss disadvantages of both. Here disadvantages is given. First one,
is single host node. The disadvantages of single host mode is one point failure because network service are stored on central server. Okay, network services are stored in central server. Suppose if central server is failed, networking don't happen. Like happen if main place, if main central service is failed, then how we can access anything, right? Then next, multi-host mode. As each compute node needs a public IP address for access the internet. If it is not possible to obtain the set of public IP address, we won't be able to use multiple nodes. Then this is second point of this unit, like OpenStack cloud architecture. They can ask you explain the architecture of OpenStack. So you can I can mention in some table is given here, and there is some components is there. Let's see. Let's discuss OpenStack cloud architecture. It is important for your exam also. OpenStack is a free and open source software platform for cloud computing. It is mostly deployed IaaS, means infrastructure as a service. That virtual server and other resources are made available to customer. Okay. OpenStack as a modulator architecture. We have different modulator or open source project, and we can say component which different vendors, but all these project or component are connected to give us infrastructure. In conceptual architecture, we can see that there are 9 different components. See here, this all are 9 different components. Okay, in this box is given now Nova, cylinder, suite. These all are 9 components. Okay, there are 9 different components and how they conceptually interact with each other. If is shown here, let's see. Let us first understand what is component providers. Among all components, we have two categories. First, core component and another supporting component, which provide core service and supporting service, respectively. In core service, we have Nova that provides compute service. That is, provide virtual server upon depend in automates and manage pool of compute resources. Then we have Cinder. Okay. Second is a Cinder. It's provide block storage. What? It's provide block storage service for OpenStack. It is designed to present storage resource to end user. Okay, it's designed for end user, and this storage resource will then be used by Nova. Okay, the short description of Cinder is that its virtualization, the management of block storage device, and provide end user with self-service application programming interface to request and consume those resources. Then we have Swift that provides object storage, that is the data stored in the form of object. Okay, so here it is not like various file system as everything is stored in the form of object. If you want to modify something, you will need to pull out that file, modify it, and then push it back again. This sweep tedious, but it is best. Little bit hard, but best to string images as object or spin videos as no modification are required. Swift provides replication, which is not provided by Cinder. Okay, it stores data across various places, and Swift also provides scalability. That is, you can increase or decrease storage as per your need. Then we have Neutron. Then we have Neutron. Neutron provides network connectivity as a service. It is a system to manage network and IP address that can be scaled user. User can use this API and create network for different users group
and different application. Okay. In supporting service, another box is supporting service. We have Keystone. Keystone is a central component for authentication and authorization. For all OpenStack service, for authentication, username, password, token-based system, or Amazon Web Service login. Tradition we use along of this. It also provides a catalog which show list of all the service deployed in cloud. Then we have Glaze. It provides image service for OpenStack cloud environment. The ISO images for virtual machine and metadata are stored here, and they can be discovered, registered, and retrieved by the user. For example, if you have many virtual machine, okay, which are working in the same manner, you can create an image of one of these virtual machine. Uh, then you use it as template for another virtual machine. If you want to take backup of data stored on server, you can create a server images, that is copy of all data. Server contain and store it at multiple locations. Then we have Horizon. Horizon, it provides a dashboard service, that is a web-based user interface for all the OpenStack service with base application web graphical user interface. You can perform most operations on your cloud, like launching a virtual machine, assigning IP address, and setting access control. Then next is a ceilometer. Ceilometer, often known as telemetry, provides and monitoring service. It provides data about all physical and virtual resources being used by cloud. Based on this, that cloud provides can charge their users. Then we have Heat. It provides orchestration service. You need to create a template of how your infrastructure will be. Okay, you have to just create a template of your infrastructure. Then you load this template in Heat. After creating, you have to load this template in Heat. Your cloud is created. If you want to update your cloud, simply update the Heat template and your cloud infrastructure will be updated. Heat also provide an auto scaling service, that is used along with Ceilometer. For example, if data from Ceilometer shows that CPU utilization is more than 70% for more than 5 minutes, then the trigger can be fire, which will make Heat autoscale resources and add more fund of web server. Now, Heat, which is used for orchestration. Orchestration, we have Horizon, which provide GUI, graphical user interface, to all the other project or component. And then we have Keystone, which is a use for authentication and authorization. In similar manner, all the project or component are interconnected to each other. Then next is cloud computing storage. This is cloud computing. Cloud storage is a service that allows the save data, मतलब डाटा आप सेव कर सकते हो on offsite storage system managed by third party and access कर पाते हैं web service API. API यूज कर आप cloud storage की services को access कर सकते हो. Then storage device can be classified into two categories. Two categories में divide किए. First one block storage device and another is a file storage device. Block storage device. The block storage device offer raw storage to the client. Okay, this raw storage
are partitioned to create volumes. Suppose जब भी आपको जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसमें आपको एक बड़ा हार्ड डिस्क 1 टीबी का हार्ड डिस्क मिलता है। तो उस हार्ड डिस्क में आप लोग क्या कर सकते हैं, वो एज ए रो डिस्क होता है जिसमें कि आप पार्टीशन कर सकते हो अपने हिसाब से। और सो ये एग्जांपल मतलब आप अपने हिसाब से पार्टीशन करके उसको यूज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज file storage device. File storage device. The file storage device offers storage to client. Okay, in the form of files. ये file में आता है, इसमें row नहीं आता है. Okay, means you don't give don't need like 1 TB hard disk and all. It is a file. Means maintaining its own file system. This storage is in the form of network attached storage NAS. यहाँ पर आपको रो डाटा नहीं मिलता है एंड यहाँ पर फॉर्मेट नहीं कर सकते हो। यहाँ फाइल्स के फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा, मतलब स्पेस मिलती है। ओके, एंड एनएस मतलब नेटवर्क अटैच स्टोरेज, एनएस के फॉर्म में स्टोरेज होता है। ओके, नेक्स्ट क्लाउड स्टोरेज क्लासेस। क्लाउड स्टोरेज कैन बी broadly classified into two categories. अभी जो cloud storage two categories में divide किया है। First one is unmanaged cloud storage and next is managed cloud storage. Okay, let's see unmanaged and managed cloud storage points. Unmanaged cloud storage means the storage is pre-configured for the customer. तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकेशन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों को मैनेजर वो प्री कॉन्फ़िगरेशन करके देगा दैट साइज ऑफ फाइल etc. द कस्टमर नाइदर फॉर्मेट नॉर इंस्टॉल इज ऑन फाइल सिस्टम और चेंज ड्राइव प्रॉपर्टीज बिकॉज ये प्री कॉन्फ़िगर है। सो ना ही आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ना ही इंस्टॉल कर सकते हो और ना ही चेंज कर सकते हो ड्राइव प्रॉपर्टीज को। ओके, देन मैनेज क्लाउड स्टोरेज। मैनेज क्लाउड स्टोरेज ऑफर ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस। ओके, वो आपको ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस ऑफर करती है ऑन डिमांड। मींस इफ यू वांट एक्स्ट्रा स्पेस देन यू हैव टू पे एंड यू कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिलता है, स्पेस ऑन डिमांड, जितना आपको चाहिए आपको स्पेस मिलती है, उसके हिसाब से आपको पे करना होगा। द मैनेज क्लाउड स्टोरेज सिस्टम appears to the user to raw disks that user can partition and format. Simply हमने देखा जैसे कि ब्लॉक स्टोरेज में रो स्टोरेज मिलता है, राइट? वैसे ही यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से पार्टीशन कर सकते हैं एंड इसमें आप फाइल सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो क्लाइंट एंड कस्टमर जो खुद से मैनेज कर पाता है स्टोरेज को, एंड अनमैनेज में क्लाइंट मैनेज नहीं कर पाता है, ये प्री कॉन्फ़िगर आता है यहाँ। सो ये बेसिकली डिफरेंस है, मतलब जो आपके हाथ में जो आप खुद से मैनेज कर सकते हो, यू कैन टेक स्पेस, you can use it, वो मैनेज मतलब मैनेज बाय योरसेल्फ। ओके, इन अनमैनेज में it will provide by not you can't use by yourself। okay, then next is private cloud model. This is also important for your exam. Let's see, एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि explain the types of cloud, then you can and if they ask 5 marks के लिए then you have to mention the type of cloud, private, public, hybrid and architecture प्राइवेट का there in my PDF. तो आप ये PDF के डायग्राम को भी शो कर सकते हैं, you can explain it. Okay, then private cloud model. Okay, in this system and service are accessible only within the organization. You know private means what? Who provide security, मतलब जो सिक्योर होता है वही प्राइवेट होता है। ओके, लेट्स सी, जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वही इसको मैनेज करेंगे। इट कैन बी मैनेज बाय थर्ड पार्टी आल्सो, बट यूज ओनली हु एक्सेस यूज दिस। मतलब इफ प्राइवेट क्लाउड में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड से स्पेस या रिसोर्सेस लिए और जिस पे वर्क प्राइवेट क्लाउड के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, देन दे कैन ओनली एक्सेस दिस रिसोर्स।
हम कह सकते हैं कि प्राइवेट क्लाउड अलाउ इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेस ओनली by the members of organization. Okay, example Microsoft private cloud provide करता है. Then we have VMware, ये भी प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करता है. एंड उबंटू के थ्रू भी हम प्राइवेट क्लाउड की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं. लेट्स से वी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कंपनी ए एंड company A. So here we can see that we can say that this company A and company ने अपना क्लाउड सेटअप बनाया है अपनी कंपनी को कंपनी के अंदर, ओके, रखा है अपनी कंपनी के अंदर. अब इस क्लाउड के अंदर कुछ रिसोर्सेस है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम. देन कुछ रिसोर्सेस होगी, कुछ सिस्टम इस कंपनी ए में है, कुछ स्टोरेज डिवाइस है, कुछ नेटवर्क के रिसोर्स है. देयर आर वेरियस रिसोर्सेज, मतलब बहुत से रिसोर्सेज कंपनी ए में है. इन दिस क्लाउड एंड दिस रिसोर्सेज एक्सेस बाय ऑर्गेनाइजेशन पार्ट. ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ही एक्सेस कर सकता है, मतलब कंपनी की यूजर. सपोज एक्स वाई जेड, आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर दिस डायग्राम ए एंड एबीसी एंड एक्स वाई जेड इज देयर, ओके. So they can access this resource. Why? Suppose because they are trusted, means here what two user ABC and दूसरा user XYZ. So ये दो यूजर इस क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, बट इसमें एक कंडीशन है कि both the user should be member of company, okay, कंपनी ए, तभी वो एक्सेस कर सकते हैं. सपोज कोई बाहर का यूजर आया, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर एम है, उसके बीच में क्रॉस है, मतलब एरर मैंने शो किया. वाई? लिसन, सपोज कोई बाहर का यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एम, तो वो अनेबल हो जाएगा बिकॉज वो कंपनी ए का पार्ट नहीं है. उसको मतलब बाहर के यूजर को एक्सेस करने में एरर फेस होगा. सो ये था प्राइवेट क्लाउड का डायग्राम. मतलब इस डायग्राम में क्या देखा हमने, दो एक्स वाई जेड, एक कंपनी जहाँ पे एबीसी एंड एक्स वाई जेड दो यूजर है, द बोथ आर पार्ट ऑफ ए कंपनी, सो दे कैन इजीली एक्सेस दिस रिसोर्स एंड everything whatever is there in company, but M is not part of this company, so they can't be accessed. Okay, ये private, this means private cloud. So let's see advantages of private cloud. High security and privacy. या जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है, प्राइवेट क्लाउड में डाटा की सिक्योरिटी प्राइवेसी ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज अ मोर कंट्रोल. प्राइवेट क्लाउड के ऊपर कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है, लाइक यूजर एक्स वाई जेड एंड एबीसी एक कंपनी के पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के पार्ट है. देन दे कैन बी एक्सेस ए कंपनी यूज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव ऑथोरिटी, बट बाहर का यूजर एम नहीं कर सकता बिकॉज दे डोंट हैव ऑथोरिटी. ओके, देन कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, एंड फाइनली इम्प्रूव एंड रिलायबिलिटी. इन सब पार्ट का आप इस चीज से कह सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड इज ओनली यूज बाय ट्रस्टेड पीपल. जो इस कंपनी की काम कर रहे हैं वही यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्राइवेट क्लाउड. फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड. सपोज एक कंपनी है जिसका क्लाउड दिल्ली के अंदर, एंड उन्हें उन्हें लोकली इस क्लाउड को दिल्ली के अंदर बनाया है, ओके, तो दिल्ली के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे. एंड अगर आपको कहीं और से एक्सेस करना है तो अदर सर्विस आपको यूज करनी होगी, जो थोड़ा सा एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है. देन प्राइस इज मोर. जो थर्ड पार्टी आएंगी उस प्राइवेट क्लाउड को बनाएंगी, उसकी प्राइसिंग भी ऐड हो जाएंगी, एंड आपको न्यू हार्डवेयर सेटअप करना होगा. सो जो प्राइस होगा वो इंक्रीज हो जाता है. देन स्केलेबिलिटी इज लिमिटेड, क्योंकि एक बार आपने जितने रिसोर्स आपने सिस्टम में लगाए हो उतने में ही आपको जनरली आपको स्केल करना की कोशिश करते हो. अगर आप ज्यादा लगाओगे तो आपको उसकी कॉस्टिंग देनी होती है. देन स्किल पीपल आर रिक्वायर्ड टू मैनेज क्लाउड. कंपनी में जनरली क्या होता है, एक जावा का डेवलपर, एक ओरेकल का डेवलपर, आपको इनके अलावा एक क्लाउड का डेवलपर एंड एडमिन रखना पड़ेगा. सो स्किल पीपल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी जो क्लाउड आएगा वो किसी का पार्ट होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का. ओके, this is a private cloud advantages, disadvantages, and diagram is here. Now move on network level security. Okay, they can ask explain the network level security.
ओके, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी बेसिकली जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पुटअप होता है, लाइक एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सो नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली क्या है, उसके क्या इश्यू है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। नेटवर्क लेवल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड यूजर रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क है, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी के लिए था। फिर अगेन आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी के लिए। इसके पहले प्रीवियस जितने भी हमने लेवल की सिक्योरिटी देखी, मतलब देखो अभी जब नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी के लिए कौन प्रोवाइड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाउड यूजर या यू। ओके, लेट्स सी। अभी जो हमने जितने भी लेवल की सिक्योरिटी देखी, जैसे कि होस्ट लेवल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, देन वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी, ये सारी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल कौन थे? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। बट जो नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी होती है, ये बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, देन वो क्लाउड का यूजर होता है। ओके, मीन्स यू। लेट्स सी इन डिटेल ऑफ नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी। नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी थ्रेट्स। फर्स्ट, ensuring confidentially and integrity, मतलब जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो क्लाउड पे, उस डाटा की जो भी इंटीग्रिटी है, जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब सिंपली आपका डाटा चेंज नहीं हो रहा है, मॉडिफाई नहीं हो रहा है। एंड कॉन्फिडेंशियल मतलब आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी मॉडिफाई नहीं कर रहा है, रीड नहीं कर रहा है। इंटीग्रिटी में क्या होता है, आपका डाटा रीड भी होता है एंड मॉडिफाई भी होता है, अटैकर या थर्ड पार्टी के थ्रू। सो नेक्स्ट थ्रेड इज एंश्योरिंग प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, मतलब जो ऑथराइजेशन से रिलेटेड है, दैट इज जो ऑथराइज बंदा है किसी भी नेटवर्क का, वो ही इस नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। जो नेटवर्क लेवल में अवेलेबिलिटी का इशू आता है, बेसिकली नेटवर्क लेवल अवेलेबिलिटी का इशू आता है बेसिकली डीओएस की वजह से आता है। दैट इज डीओएस मीन डिनायल ऑफ सर्विस। यहाँ पर जो अटैकर होते हैं वो क्या करते हैं, अननेसेसरी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं आपके सर्वर को। क्लाउड का जो सर्वर है यहाँ पर रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं। जो ये अनऑथराइज बंदा है होता है, वो अटैकर होता है, हैकर होता है। ये क्या करता है, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करता है, मीन्स टाइम पर सर्विस ना मिले इस वजह से वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कंप्यूटिंग सर्वर को पे। अननेसेसरी बहुत रिक्वेस्ट एक ही टाइम पर आ जाएंगी, तो इस कंडीशन में क्लाउड का सर्वर एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता एंड एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। सो एक ही साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है। सो इस रीजन से क्लाउड का सिस्टम स्लो हो जाता है। पहले हमने क्या कहा था कि क्लाउड ऑथराइज को 24 मतलब क्लाउड ऑथराइज होता है जो, उसको 24 आवर सर्विस अवेलेबल करनी पड़ती है, मतलब वो करना चाहिए उसको किसको। बट अननेसेसरी रिक्वेस्ट की वजह से डिनाइल ऑफ सर्विस की अटैक होता है, वहां पर अवेलेबिलिटी का लॉस हो जाती है एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती एंड इश्यू क्रिएट हो जाती है। ओके, सो इस वजह से डियोस इज अ टाइप ऑफ अटैकर, जिससे यहाँ पे सिस्टम स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हेड इज establish कनेक्शन ओवर द नेटवर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली जो सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, मॉडल है, वो काम करता है वो किस पे काम करता है, नेट पर, इंटरनेट पर। दैट इज जो रिमोट लोकेशन पर कहीं पर जो सर्वर है क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, उस सर्वर पे आप डाटा स्टोर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, और उस डाटा को एक्सेस कर रहे हो अपने घर पर बैठकर इंटरनेट की हेल्प से। आपने पीसी पर जो सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहिए, इंटरनेट का इंटरकनेक्शन सिक्योर होना चाहिए फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर टू रिमोट सर्वर ऑफ क्लाउड। ये जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आपके डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें मेंटेन रहे। आईएसओ ने इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर होना चाहिए, ताकि आपका डेटा का सिक्योरिटी ट्रांसफर कर पाओ, सिक्योरिटी ट्रांसफर कर सको। अगर कनेक्शन सिक्योर होगा, देन यू कैन एबल टू ट्रांसफर योर डेटा टू एनीवेयर विदाउट एनी हेडेक। ओके, then next is a network level security is responsible for, okay, net
सिक्योरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल कौन से है? HTTPS, SSH एंड FTP। जो भी नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है उनका सिक्योर करना या क्लाउड प्लेटफॉर्म उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योर प्रोटोकॉल को यूज में लेके लाइक HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, SSH, ये सब जो सिक्योर प्रोटोकॉल है इनका इम्प्लीमेंट कर यूज करना चाहिए। अगर हम लोग इस प्रोटोकॉल के हेल्प से कोई भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, देन हम लोगों को हेडक नहीं होगी। ओके, देन सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, जैसे कि अभी मैंने कहा सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगर आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल सिक्योर होगा, आप HTTP को यूज कर रहे हैं, SSL को यूज कर रहे हो, FTP, SSH को इनका यूज कर रहे हो, सो जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा ये ऑलरेडी सिक्योर होगा। With the help of encryption, you can also secure your data while transmission. Next, it is a cloud user. Next is a okay, sorry. Next, the cloud user is responsible for network security. Cloud user should use secure network connection, data sharing with the authorized user. Uh, यहाँ पर सिर्फ ऑथराइज यूजर के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। ऑथराइज यूजर मतलब जिसके पास एक्सेस राइट है उस डेटा को यूज करने के लिए। जो ऑथराइज ऑथेंटिकेट है सिर्फ उसी को आप डेटा शेयर कर सकते हो। ओके, आफ्टर दिस द लास्ट पॉइंट इज deployment, control deployment model. Okay, let's see first what is deployment and types of deployment model. डिप्लॉयमेंट इज इस वर्ड का मतलब माइग्रेट यहाँ मूवमेंट होता है। सो किस चीज का माइग्रेट हो रहा है, किस चीज की मूवमेंट हो रही है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म्स में बात करें, सो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग रिसोर्स को कंप्यूटिंग रिसोर्स क्या हो जैसे कि मनी क्या होती है, जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्स मतलब मेमोरी, प्रोसेस, ये सब। सो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स को माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कहाँ पर, फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे रिमोट सर्वर है वहां पर हम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को होस्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इस चीज को बेसिकली वी कॉल डिप्लॉयमेंट। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करना, मूव करना, इट्स कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। ओके, तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर या कंप्यूटिंग रिसोर्स को डिप्लॉय क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा एंड यूजर, क्लाउड का एंड यूजर है, वो क्या कर पाए, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है या IaaS सर्विस है, सारी सर्विस को इंटरनेट के थ्रू घर पर बैठकर यूज कर पाए, क्लाउड का यूज करे, मतलब कर सके। डिप्लॉयमेंट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग रिसोर्स, प्रोसेसिंग पावर टू रिमोट सर्वर ऑन इंटरनेट। जैसे कि हमने बात किया कि डिप्लॉयमेंट मॉडल में बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, कंप्यूटिंग रिसोर्स का, दैट इज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर का क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, फ्रॉम वन होस्ट टू, या वी कैन से रिमोट सर्वर। क्लाउड पे जो सर्वर है वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स को। क्यों कर रहे हैं, सी दिस अनेबल एंड यूजर्स टू गेट द सर्विस ऑफ क्लाउड सच एज SaaS, PaaS एंड IaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये सर्विस एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, विच प्रोसेस, डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ पे 4 मेन टाइप होते हैं डिप्लॉयमेंट के। फर्स्ट मीन्स प्राइवेट क्लाउड, community cloud, public cloud, and hybrid cloud. Let's see. Private, public, private, hybrid, and community cloud. So, public cloud. Public cloud ये जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी क्लाउड की सर्विस होती है, जो भी हार्डवेयर होता है, जो भी रिसोर्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग पावर या मेमोरी होती है आपकी क्लाउड की, वो बेसिकली क्या होती है, जो आपके जनरल पब्लिक है उसके लिए अवेलेबल होती है, ओपन होती है।
लेट्स सी नेक्स्ट, मतलब पब्लिकली अवेलेबल ऑल रिसोर्सेज और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनीवन कैन एक्सेस इट्स कमिंग पब्लिक क्लाउड. Let's next is a private cloud. Private cloud deployment model, that is प्राइवेट क्लाउड, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइवेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड का सेक्शन असाइन करते हैं, एंड जो जनरल पब्लिक है उसके लिए ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है. ये जो क्लाउड की सर्विस है वो प्राइवेट क्लाउड में अवेलेबल नहीं होती है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लाउड का सेक्शन असाइन कर देते हैं. तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको असाइन है क्लाउड का सेक्शन, वही प्राइवेट क्लाउड का यूज करती है. उसको सर्विस को, उसके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, रिसोर्स को यूज कर सकती है. सो दोनों में देखा जाए तो प्राइवेट क्लाउड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होता है. सो शेयरिंग नहीं होती है. ओनली दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज, जहाँ सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाती है. मतलब प्राइवेट क्लाउड में पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टेड मेंबर ही यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक लेवल बढ़ जाता है. बट इन पब्लिक क्लाउड जो आपकी कंप्यूटिंग रिसोर्स होती है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, ये सारी चीज शेयर होती है, ओके, बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन से दैट जनरली पब्लिक के बीच में जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्स होती है ये शेयर मोड में होती है. जहाँ जहाँ भी फंडा आएगा शेयरिंग का, वहां पर आपकी सिक्योरिटी का एक लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बंदे के पास, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इस क्लाउड प्लेटफॉर्म की सर्विस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एक्सेस हो जाता है. पब्लिक क्लाउड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये शेयर मोड में है. बट प्राइवेट क्लाउड ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज प्राइवेट क्लाउड यूज करने के लिए पे करना पड़ता है. देन यू कैन सी दिस इन डायग्राम. देन ओके, हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका पब्लिक क्लाउड है एंड जो आपका प्राइवेट क्लाउड है, इन दोनों के जो भी ड्रॉबैक्स है उनको क्या करता है, ओवरकम करता है. और जो भी बेनिफिट्स है उनको क्या करता है, कंबाइन कर देता है. मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड के जो भी बेनिफिट्स है उनको कंबाइन कर देता है. मतलब आपका हाइब्रिड क्लाउड हाईली सिक्योर भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का. नाउ लेट्स सी द कम्युनिटी क्लाउड. फर्स्ट सी मीनिंग ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी इज अ बेसिकली आपकी सोसाइटी का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, सिमिलर प्रोसेस को एग्री करता है, जहां पर एक जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म में आते हैं और उनका एक ही मिशन होता है. सिमिलरली मिशन ऐसे सेम मिशन ग्रुप का हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी. कम्युनिटी का एग्जांपल दूं, जैसे फेसबुक पेज होता है. फेसबुक पेज से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, ओके. वो ऐसे लोग होते हैं सेम थॉट प्रोसेस से एग्री करते हैं. कम्युनिटी क्लाउड में जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेम मिशन है, सेम पॉलिसी को फॉलो करते हैं, उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी अगर से सेम है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती है और एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करती है. जैसे कि एक सिक्योरिटी लेवल भी सेम होना और हर मिशन भी सेम होना. फॉर एग्जांपल दिया जाए तो सपोज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नासा एंड इसरो, ये क्या करती है, स्पेस के सेक्टर में काम करती है. इनकी पॉलिसी भी सेम है, राइट. ये क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं ताकि ये इजीली डेटा एक्सचेंज कर सके, मैसेज एक्सचेंज कर पाए. जो भी रिसर्च हो रही है उसको जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला है उसको एक्सचेंज कर पाए. सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती है और कम्युनिटी क्लाउड को यूज करती है. ओके, ओके, थैंक यू. Thank यस, you. फीडबैक. नासिर. समझला नासिर. होते. नमीरा. मेरा कुछ नहीं समझा शायद.